اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان هذه امتکم امتا واحدہ۔ عزیزان گرامی، علماء کرام، میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بزرگان کی دعوت پر اور رہنمائی پر آپ یہاں تشریف لائے اور یہ جو پروگرام منعقد ہوا انتہائی بر وقت بر موقع اور ضروری تھا کہ ایسا ایک مشاورتی پروگرام منعقد کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایسے مواقع پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشاورت کے نتیجے میں جو پروگرام، جو تجاویز اور اقدامات طے ہوئے سامنے آئے، کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اس پر عمل کریں، تبھی یہ کانفرنس نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نشستن دو گفتن دو برخاستہ۔ اگر ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو بلایا گیا، سب کی اپنی اہمیت ہے، سب کی رائے کو اہمیت دی گئی اور اس کی روشنی میں یہ جو قراردادیں تھیں یہ بنائی گئیں، اس کی روشنی میں بیانیہ بنایا گیا، لہذا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، بڑے پراعتماد انداز میں اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں من موقع القوت والاقتدار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیجیے۔ الحمدللہ تشیع کو اس ملک کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ موجودہ یہ جو فتنہ ہے اس وقت اٹھا ہے، یہ بھی ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے، اس قسم کے مراحل اور لمحات آتے رہے۔ الحمدللہ ہم ان لمحات سے جیسے سرخرو اور سرفراز ہو کر گزرے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ فتنہ ناکام ہوگا، فتنہ گر جو ہے وہ نامراد ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر ہم بڑے واضح انداز میں، ہم نے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، چند جملے کہوں گا، ہم نے بہت واضح انداز میں یہ واضح کیا کہ تشیع ایک مکتب ہے، تشیع ایک مکتب فکر ہے، تشیع ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے، تشیع قرآن و سنت کی ایک اعلیٰ و عرفہ تعبیر اور تشریح ہے۔ بہت سی تشریح اس ملک کے اندر ہے، میں سب کو مانتا ہوں، تو ان کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن تشیع ایک تعبیر ہے اور تشریح ہے، اور تسلسل کے ساتھ اس تعبیر و تشریح کے جو حقائق ہیں، تشیع کا جو روشن چہرہ ہے واضح ہوتا رہا۔ تشیع کے پاس علمی ذخائر ہے، اس کے پاس علماء ہے، مجتہدین ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ محققین و مجتہدین کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 جولائی کو یوم نفاذ فقہ جعفریہ ہم مناتے ہیں، اور فقہ جعفریہ کا پروگرام جو یہاں کنونشن ہوا تھا، اس کی میں توجیہ یہی کرتا ہوں کہ جب آپ اسلامائزیشن کرنے چلے تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تشیع میں سکالر ہیں، محققین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کے استنباطات سے بھی آپ کو استفادہ کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی ایک مکتب فکر موجود نہیں ہے، بہت سے مکاتب فکر ہیں، سب سے استفادہ کیجئے، کسی کو نظر انداز نہ کیجئے۔ اس لیے ہم نے یہ واضح کیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہمیں یہ فخر ہے اس بات کا، اور آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ اپنے عقیدے اور نظریے پر بڑی
क़ुव्वत के साथ और अज़्म के साथ कायम रहते हुए इत्तेहाद व वहदत को हमने इस मुल्क में उसकी बिना डाली, बानियों में से हैं। पढ़ लीजिए मुत्तहिदा मजलिस अमल जो बड़ी दीनी जमातें हैं, जिसके अंदर 5 बड़ी दीनी जमातें आज भी मौजूद है, गैर फ़ाल है, उसका एलामिया इस्लामाबाद पढ़िए, उसके अंदर किस अंदाज में हमने वहदत और अंदाज को वहाँ वहदत और इत्तेहाद को उजागर किया। तशय्यो उसका एक हिस्सा है, 5 बड़ी दीनी जमातों में से एक है। यही वजह थी, लंबी बात हो जाएगी, जब मैं गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त अगर असम्बली में आवाज़ उठाई मेरे हवाले से और मेरे हक़ में, अगरचे तो दुनिया में हत्ता के त्यूनस से और फलां से जहाँ जहाँ इस्लामी तारीखें हैं सब ने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठी तो मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से कि ये हालांकि जो लोग जिनके जुर्म में या इल्ज़ाम में या फलां में मैं गिरफ़्तार हुआ था वो शायद उनके हम मसलक भी हों किसी हवाले से, लेकिन हमारे हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये इक़दाम और ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। इसलिए मैं समझता, और मुत्तहिद मिली यकजहती कौंसिल आप जानते हैं सन 95 से मिली यकजहती कौंसिल अब तक उसके भी हम बानियों में से हैं और उसमें अब तमाम दीनी जमातों और गिरोहों के साथ मौजूद हैं, आज भी वैसे ही मौजूद हैं। फितने उठते रहे, हम उन फितनों का मुकाबला करते रहे। अब ये फितना उठा है, ये इंशाअल्लाह ये फितना जो है ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और खात्मे को पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है परेशान तो होना था और उसके लिए इक़दामात करना चाहिए था, मुशावरत होनी चाहिए, मुशावरत हुई। इस मुशावरत को आप मंतकी अंजाम तक पहुँचाइए। इस किस्म की मुशावरतें जारी रहनी चाहिए और उसके लिए जो इक़दामात तजवीज़ हों, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं समझ सका यहाँ कोई रेफरेंस की बात हुई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या क्या हुआ, किस हवाले से रेफरेंस हो। मुझे किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के 20 फैसले रखता हूँ जो तशय्यो के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से आखिरी कन्फर्म फैसले हैं। ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब रोकता हूँ लोगों को अदालत में जाने से, हत्ता कि गिरफ्तारी के वक्त में बसाव का अगरचे मुश्किल में होता है लोगों के लिए। मैं कहता हूँ किसी को ज़मानत कराने की भी ज़रूरत नहीं, न ज़मानत न वकालत, लेकिन मुश्किल पेश आती है, बसावत करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई मुश्किल हो इस हवाले से हम देख रहे हैं। इस दफ़ा जो इस मरतबा मैं आपको बता दूं, इस दौरे हुकूमत में मैं नोट कराना चाहता हूं, कन्फर्म कराना चाहता हूं, ऐसी बातें हुई जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नहीं हुई। FIR पहले भी होती रही होंगी, अब के मरतबा जो FIR हुई वो किसने हुई की? घर में कोई शख्स पढ़ रहा था दरूद या ज़ियारत पढ़ रहा था या दरूद पढ़ रहा था या अजान दे रहा था, उस पर FIR किसके ज़िम्मे लगाया? ये काम ये बाजू हमारे आजमाए हुए। ऐसा मत कीजिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे शहरी हुकूक हैं और आइन के अंदर हमारी सूरत हाल कन्फर्म है। मैं बात नहीं करता, लोग फिर मैं बाज़ बातों से खुद जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ आइन के अंदर है, पढ़ लीजिए, जो कानून जानते हैं जाकर पढ़िए। मैं दफ़ा 260 है या कितना है, मुझे याद है शायद, उसका सबसे बेहतर मिस्दाक पाकिस्तान के अंदर हम हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है हवाला देने की, इसलिए कि ये चीज़ें कन्फर्म हैं, वाज़ेह हैं और रोशन हैं। मेरे हुकूक की बात, शहरी आज़ादियों का मसला पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़ेह है। गैर कानूनी इक़दाम है किसी मजलिस को रोकने के लिए FIR करना। मैं माज़ाराई का कायल नहीं हूँ, मैं राब्तों का कायल हूँ, मैं पुरअमन एहतजाज का कायल हूँ। मैं माज़ाराई नहीं चाहता इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क माज़ाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वरना जितना बड़ा इज्तिमा हम बुला सकते हैं, शायद कोई मकतब फ़िक्र इतना बड़ा इज्तिमा न बुला सकता हो। इस्लामाबाद मुतहम्मिल नहीं होगा जब हम लोगों को इसकी तरफ बुलाएंगे। इसलिए मैं इन बातों को नहीं छेड़ता। हम वहदत व इत्तेहाद वाले हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। तशय्यो एक ज़ाब्ता हयात
की तशरीह और ताबीर है, एक कुरान और सुन्नत की ताबीर है, और यहाँ मानने वाले तशय्यो के बेपनाह तादाद में मौजूद हैं, उनका हक है। आइन भी इसको तस्लीम करता है, इसलिए हमें कोई फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फितने, ये फितने जो उठते हैं, इनको रोकने के लिए तदब्बुर से, हिकमत से, दानाई से, एक फितना नहीं है। कुफरियात और शिरकियात का फितना पहले है। तौहीन अहले बैत या तौहीन सहाबा की आप बात करते हैं, तौहीन उलूहियत हो रही है यहाँ पे। तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत वो पहले हैं। वो जो तौहीन तौहीद है इस मुल्क के अंदर, उस पर पहले हमें आवाज़ उठानी चाहिए, पहले बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ भी मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। और कुछ हो रहे हैं इक़दाम, उनको और ज़्यादा मुनज़्ज़म, और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा काबिल कबूल बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा ये तौहीन तौहीद हो, या तौहीन इमामत हो, या तौहीन रिसालत हो, या तौहीन इमामत हो, या तौहीन अहले बैत हो, या तौहीन सहाबा किराम हो, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा। हम तकफ़ीरी नहीं है, हम काफिर नहीं करार देते किसी को। काफिर करार देना भी हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है। हम गालम गुलूच वाले भी नहीं है। इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनू सब्बाबीन, हम तौहीन वाले भी नहीं है। हमारे मराजे का इन्हीं दिनों में एक चीज़ आ गई कि मुकद्दसात की तौहीन हमारे यहाँ हराम है। बाकी रह क्या गया? हक़ाइक़ बयान करना, तारीख़ी हक़ाइक़ को मुनासिब अंदाज में बयान करना, ये हमारा हक़ है। लिहाजा तशय्यो को, हक़ाइक़ को बयान करना, ये हमारा हक़ है। खलीफतु बिला फसल कहना हमारा हक़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मांग नहीं रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इससे मसाइल पैदा होंगे मुल्क के लिए। हम उन लोगों को जो फितना अंगेज़ी कर रहे हैं, वो एक तकफ़ीरी गिरोह है। अहले सुन्नत की आप बात करते हैं, कह रहे थे कि 90% या कितने फीसद जो है वो हमसे अब थे और जुदा हो रहे। मैं उनकी बात को माना हूँ। खुर्शीद अनवर जवादी साहब कह रहे थे इसलिए कि अब एक इस फितना, कुछ बाज़ बातें मैं कर नहीं सकता। ये जो हालात गुजरे हैं, इन हालात में सूरत हाल ऐसी रही कि इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोशिशें कमज़ोर रहीं। कुछ और वजूह हैं जो बताऊँगा। कोशिशें होनी चाहिए और तेज तर करना चाहिए। क्यों हमसे जुदा हों लोग? तमाम मकातिब फ़िक्र के जो मुस्तनद लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ये कोई गिरोह हैं जो कारोबारी हैं, और मैं इसको कोई बैरूनी साजिश होगी, अभी तक मेरे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत होगा तो मैं बैनुल-अक़वामी ये बैरूनी साजिश समझूंगा। मैं यहाँ इसको मकामी मसला समझता हूँ। पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, अब अलबत्ता कुछ अनासिर हैं जो इसको हवा देने वाले हैं, और इसके लिए इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं तकरार करूँगा कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये इस हवाले से हुआ कि इस वक्त जो फितना अंगेज़ी हो रही है, इसके लिए हमें एक मौक़िफ़, हमें एक लाहे अमल लेना चाहिए। और वो मौक़िफ़ भी आपको मिल गया, लाहे अमल भी मिल गया। इस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये मुशावरत इंशाअल्लाह इसी अंदाज में, ये मुशावरती अमल है। कोई किसी को किसी पर तरजीह नहीं है, बराबरी है सबका राय में। अलबत्ता हमें दराजात का, मरातिब, हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल करना चाहिए। ज़रूर मैं मुतवज्जे करूँगा कि हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल हो। राय सबकी बराबर है कि हिफ्ज़ मरातिब होना चाहिए। ये राय दीजिए, कोशिश कीजिए, आरा आपकी जमा होनी चाहिए, और होंगी जमा, और उनको मज़ीद उसको शक्ल देकर आगे ये जब जिस पर अमल हो जाएगा तो अगले मरहले के लिए मज़ीद आरा आपकी आएगी तो उस पर भी अमल होगा। मैं आखिर में बुज़ुर्ग उलमा का, तमाम का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी रहनुमाई का, और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपने ज़ामत फरमाई, बर वक्त आप तशरीफ़ लाए, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम बारगाह में अपने रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। बारगाह शर शैतान, शर दुश्मनान से अपने हिफ्ज़ व अमान में हमारी परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलात रफ़ा फरमा,
تشیع کو سرفرازی و سر بلندی عنایت فرما، دشمنان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں سے جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، ان کی پریشانی رفع فرما، جنہیں کوئی مرض، کوئی بیماری کا خدشہ یا خطرہ ہے، بار اللہ ان کو اس سے سلامتی اور عافیت عنایت فرما، تمام حضرات کو ان حالات میں عافیت سے سرفراز فرما، اتحاد و وحدت کی برکتوں سے مالا مال فرما، اتحاد و قوت کو اور زیادہ مضبوط اور توانا بننے کی ہم ہمت عنایت فرما، اس قسم کے مشاورتی اجلاس کو جاری رہنے، ان سے استفادہ کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ہمارے الہ پاکستان کو سلامتی اور خیر عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔